हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का, सभी प्रभु का हरे कृष्णा। प्रभु जी नमस्ते। मित्रों, आपका सबका आज के इस भक्ति के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का जो है सत्र, सेशन, लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो अगर हम थोड़े गंभीर हो जाएं तो कोई इस बात का बुरा ना लगाए। हम तो दास हैं, हम सब में प्रभु देखते हैं, राधा कृष्णा को देखते हैं। और अंदर बाहर तो राधा कृष्णा है, जर्रे जर्रे में राधा कृष्ण की झांकी, बस तेरी नज़र की पहचान है बाकी। तो हम तो वी आर जस्ट अ मीडियम, निमित्त मात्र भव्य सव्य साची। हम तो सिर्फ जो है मीडियम बनते हैं। तो आज का सत्र हम स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, क्या है कि जो भगत है वो दास है, आपको हंसाएगा भी, गुस्सा भी करेगा। अकॉर्डिंगली वो चाहता है कि आप भक्ति के पथ पर चले, क्योंकि आत्मा का प्यास केवल परमात्मा बुझा सकते हैं। और तो आज के सत्र में हम बताते हैं जी व्हाट इज भक्ति। तो आजकल लोग पफ्ड अप रहते हैं। दिस इगोइस्टिक अप्रोच, दैट इज नॉट भक्ति। आई एम ऑलवेज पफ्ड अप, आई एम गॉड, आई एम नॉट गॉड, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सो दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ भक्ति। फर्स्ट स्टेप इज टू लिसन एंड follow the instructions of the self-realized soul, of self-realized soul. This is the first step. Bhakti, devotional service, is a stepwise procedure. If I am not surrendered to the devotee of Krishna, then Krishna does not give me shelter, and I would always be infected with this disease of Maya. Then I have to bear the pain and sufferings without any limit. Like the same way you are already kicked by Maya again and again, but due to my ego I am ready to be kicked by Maya again. But I don't want to treat my material disease. If you are not determined for anything, you are distracted by everything. Everybody in this world is distracted. Some are distracted by Netflix and social media, and some by toxic substances. This happens because everybody wants to escape their problems. Very few want to walk the spiritual path to know their purpose in life. Once people will know themselves better, they will not look for distractions but will be focusing on their goals to live their best version of their lives. So, like some these English words have their way itself with their meaning. Words such as ego means let it go, forgive means forgiving, not taking, सरेंडर मतलब सिर को अंडर करना. सो लेट योर ईगो गो एंड सरेंडर योर सेल्फ. यू कैन बी कृष्णा कॉन्शियस, बट दैट डज नॉट मीन यू आर भक्त, you are devotee. Kans was also Krishna conscious, as he was afraid of Krishna. He was constantly thinking of Krishna, Krishna, Krishna. He was afraid of Krishna. But devotion is how to serve Krishna. That is bhakti. How I can do seva. How I can serve Krishna. So I am not doing good job, not earning good salary. I have tried everything from teenage to adulthood. I am alone and I am in stress. I never believed in God. Now I am puffed up. And now at last I am thinking, I think that I am God. This is the last leash of Maya. Final attack. तो ये माया का अंतिम पाश है. Next point is that when 2-3 years ago I was
me, I'm talking about myself. I was standing and distributing books at Gita Seva in market. I asked myself, I asked Kanaji, Krishna, what will this do? So now today I have the answer. Police, army, doctors, scientists, philosophers, everybody is in the shelter of a devotee so that he can serve Krishna and be happy. Now after seva, serving whole market is serving me. So this is what you get. You respect the society, you serve the society, society will serve you, you will get the same respect. जैसा बीज बोगे वैसा ही पाओगे, जैसे को तैसा, tit for tat. So but still devotee wants nothing. He wants to serve the society, and as he sees Radha Krishna in everyone. जर्रे जर्रे में राधा कृष्ण की झांकी, बस तेरी नजर की पहचान है बाकी. To see them I need to have spiritualize. Materialize won't do. If I materialize, if I'm having materialize, then world would be material for me. But if I am having spiritualize, world can become spiritual for me. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. All your careers, I tell everybody, when doctors, scientists, everyone, even rich come to me, rich people, very rich, they say गाड़ी है, वाइफ है, सुंदर है, मर्सिडीज है, पैसा है. क्या करेगा पैसा? We are part and parcel of Krishna. ठाकुर का सब कुछ है, ठाकुर जी में लगाइए और सुख पाइए, गाड़ी, बंगला, पत्नी, सब पैसा. अदरवाइज जो है ठाकुर में नहीं लगाएंगे तो दुख ही पाएंगे. हम चिंगारी हैं, कान्हा जी अग्नि हैं. अगर अग्नि में चिंगारी बन के जलती रहेगी तभी उसका अस्तित्व है, तभी उसका एग्जिस्टेंस है. अदरवाइज मिट्टी में फेंक दो, खत्म. पैसा क्या करेगा? यहाँ कम पैसा टेंशन, ज्यादा पैसा टेंशन. लक्ष्मी तो वैकुंठ में विष्णु के चरण चाप रही. तो जो है आप अपने पैसे को जो है लक्ष्मी बनाना चाहते हैं तो अपनी सेवाओं को, अपने धन को विष्णु में लगाइए. लक्ष्मी माने गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. सो हाउ विल द फॉर्च्यून कम इन माय लाइफ इफ आई एम नॉट डिवोटेड टू I have not devoted myself to Krishna or Vishnu? How can my money become Lakshmi? सौभाग्य की देवी है ना, सौभाग्य कैसे आएगा घर पे? So I tell people that all your careers are just for money making, which in the long run are digging you deep into blind well. एक अंधे कुएं में धकेल रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ग्रह अंधकूपम वनोगत मुकुंदम हरि मात आश्रित. भी हरि के आश्रित हो जाओ, वन में जाके शरण लो, या घर बैठे भी आप इसको हरे कृष्ण जप सकते हैं. अगर मन से वृंदावन तो तन से भी वृंदावन. सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कम पैसा टेंशन, ज्यादा पैसा टेंशन. लक्ष्मी तो वैकुंठ में विष्णु के चरण चाप रही है. डिवोटी की लाइफ में नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा. मटेरियल पर्सन, भौतिक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे आज कमाना है, कल कमाना है. भैया एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 4 पीढ़ी, मुझे 7 पीढ़ियों के लिए कमाना है. बट डिवोटी भगत कह रहा है कि जिसने आज दिया वो कल भी देगा. ही हैज नो टेंशन. तो अगर मैं अपने धन को परोपकार, पुण्य, दान, भक्ति कार्यों यानी विष्णु की सेवा में लगाऊंगा, तब मेरा धन, लक्ष्मी यानी सौभाग्य की देवी मीन्स फॉर्च्यून विल कम इन माय लाइफ. गाड़ी, बंगला, मर्सिडीज, सुंदर पत्नी सब विष्णु का है, कृष्णा का है. ठाकुर की सेवा में लगाऊंगा, सुख पाऊंगा, वरना दुख पाऊंगा. सो what I am thinking, I have children, I have family, good job, society, country, I am happy, yes, but this is temporary. For an example, Mahatma Gandhi served the country, but he was killed by his countrymen only. The real position is to serve Krishna. भगवान अपनी लीलाओं से शिक्षा देते हैं, बेटे ये तेरा शरीर रूपी रथ जैसे अर्जुन महाराज का है, 5 इंद्रियां रथ रूपी घोड़े. जैसे ये आपका शरीर है जो एक चैरियट है, रथ है,
और जो 5 घोड़े हैं अर्जुन महाराज के रथ में, वही हमारी 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंखें, जीभ और स्पर्श इंद्री। और महाभारत माने जीवन की जंग, जिंदगी की जंग। एज यू नो एवरी मोमेंट लाइफ इज ए स्ट्रगल, सो कृष्णा इज सिटिंग इनसाइड योर हार्ट एज चैत्य गुरु, and if I put my senses into Krishna, then Krishna guides me from inside my heart। तब तेरी इस महाभारत यानी जीवन की जंग, युद्ध में जीत पक्की, जैसे अर्जुन महाराज की हुई थी। तो भगवान अपनी छोटी छोटी लीलाओं से शिक्षा दे रहे हैं। सो दिस इज द रियल साइंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावना अमृत। सो डू सीरियस डिवोशन, टेक इंटरेस्ट इफ यू वांट योर लाइफ टू रन सीरियसली। लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं, बट मैं कहता हूं मैं तो चेला हूं, दास हूं, एंड दिस इज रियलिटी। मैं आप में अपने गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को देखता हूं। कल को जब आप अपनी लाइफ में इंप्रूव होते हैं, वो खुशी मेरी ही खुशी है। कल को जब आप श्लोक बोलते हैं तो हम कहते हैं आज मेरा गुरु बोल रहा है। दिस रियलिटी। धीरे धीरे मैं सीखता जा रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे आप सेवा के मैदान में उतरेंगे, आप धीरे धीरे लेवल बाय लेवल सीखते रहेंगे। पहले मैं सीखा कि नहीं सेवा करना चाहिए, फिर मैं इस भावना से ऊपर उठ गया कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब मैं कहता हूँ मेरे भाइयों की खुशी मेरी खुशी है। उसके बाद मैं जान गया मुझे खुशी बांटना है। अब मैं जान गया हूँ अच्छे से, वो मेरी खुशी पहले है, आपकी बाद में है। तो शेयरिंग इज केयरिंग। सुख को जितना बांटोगे बढ़ता जाएगा, दुख को जितना बांटोगे आधा, आधे का आधा, उसका आधा, कम होते होते खत्म। तो इन अच्छी चीजों को बांटिए, भक्ति को बांटिए। पहले उसके लिए खुद मुझे सेल्फ रिलाइज बनना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, फिर मैं इसको बांट सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तेरी डिग्रीज, प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी शीला प्रभुपाद की जय 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 हो। शीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं तेरी डिग्रीज एमए पीएचडी का क्या लाभ। जब उससे पूछा जाता है डू यू नो कृष्णा, ही सेज नो आई डोंट नो। तो ये एक मणि वाला सर्प है, स्नेक और सरपेंट विद ए जेम, ये डिग्रीज उसकी जेम या मणि है। Prabhupada says before with knife they used to kill one person, then came gun, you can kill many persons। उसके बाद क्या आए जी, रॉकेट आए, मिसाइल आए, बॉम्ब्स आए, you can kill millions of persons at once। This is given by your science। Come on, let's invent, let's discover। So the real science is Krishna consciousness। Krishna conscious science which can give relief or benefit millions of people at once। क्योंकि when there will be light of knowledge, darkness of ignorance would be removed। That will bring permanent smile on your face। फिर आपके पास है, आप अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को सोसाइटी में बांट के उसको बढ़ाते जाइए। ये जीवन की सच्चाई है, आत्मा की प्यास केवल परमात्मा बुझा सकते हैं। और देखिए काम करना मना नहीं है, मेरे पिछले जो सिंफुल एक्टिविटीज हैं पिछले जन्मों के, उसके कारण मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है इस जन्म में। अगर पाप होंगे तो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, पुण्य होंगे तो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो कामकाज को रामकाज में लगाएंगे तो जीवन में आनंद बना रहेगा और कामकाज भी अच्छे से हो जाएगा। एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट समवेयर, एटलीस्ट वी शुड चैंट। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान बना दिया है, नाम जो है भगवान से भी बड़ा है, आप इसको लेके पार हो सकते हैं। तो एटलीस्ट आई शुड 1 माला 2 माला से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे मैंने इतने लोगों को बांटी है। मेरी रियलिटी ये है कि मैं खुद 10 साल ऑस्ट्रेलिया में मैं लिक्विड इंटॉक्सिकेशन नशे पत्ते में चला गया था। आज भगवान ने कोई मेरे पुण्य कर्मों की सुकृति जागी है, मैंने प्याज लहसुन चाय जो है ये तक छोड़ दिया है और मैं भाइयों को जगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ड्यूटी है। अगर मेरे को निकाला है, मुझको भाइयों को जगाना पड़ेगा। 7-8 लोगों ने बीड़ी को कम करके 1-2 बीड़ी पे आ गए हैं
और कुछ मैकेनिकों ने देसी दारू शराब वगैरह छोड़ दिया है, क्योंकि ये है ना जो ये माला मेरे हाथ में, तो ये राधे कृष्ण की हम जपेंगे, दिस इज ए हायर टेस्ट। शाही पनीर खा लिया, मूंग मसरी की दाल क्यों खाएगा? तो ये हायर टेस्ट है, ऑल अदर लोअर टेस्ट आर गॉन। देखिए, एक होता है बॉडीली लेवल। बॉडीली लेवल में क्या है, अगर मैंने शराब पी ली, सेक्स कर लिया, आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, क्या वो अगर जब तक गुम नहीं हुई क्या आप उसे दोबारा खरीदने जाएंगे? तो शराब पी ली, सेक्स कर लिया, तो आप उसको दूसरे दिन क्यों दोबारा कर रहे हैं? इसका मतलब उसमें आनंद नहीं आया, वो चीज मैं खरीद नहीं पाया, है ना, वो हायर टेस्ट नहीं है। फिर बॉडली से ऊपर आता है मेंटल लेवल। मेंटल लेवल में क्या होता है, आपको थोड़ा ज्ञान हो गया किताबें पढ़ के, नहीं, हाँ, मतलब मेंटल लेवल में ये हो गया, आपको ज्ञान हो गया किताबें पढ़ के, तो भी आपको सब कुछ नहीं मिला, यू आर जस्ट गेटिंग अ बिट ऑफ रिलीफ, दैट इज नॉट रियल प्लेजर। स्पिरिचुअल, इससे आगे इंटेलेक्चुअल, सॉरी, थर्ड प्लेटफॉर्म जो आया इंटेलेक्चुअल, बॉडली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में प्रभु जी क्या हुआ हो गया, इंटेलेक्चुअल में हो गया कि अब मेरा जो है, मैं फिट भी हूँ, योगा या एक्सरसाइज या वॉकिंग करता हूँ, और मैं पढ़ता भी हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, मेरे पास MA PhD डिग्री है, या मैं जो है मतलब कि थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, तो इंटेलेक्चुअल लेवल ये उससे भी हायर हो गया, ये भी अच्छा है मेंटल लेवल से ऊपर। बट स्टिल आई एम नॉट हैविंग रियल प्लेजर, क्योंकि आत्मा का प्यास परमात्मा बुझा सकते हैं, जो कि हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में मिलेगा। So spiritual platform will elevate you from bodily, mental and this your bodily, mental and intellectual level. It will elevate you from all the three levels. So this is the best. This is the best level. Everyone should have it. Give an effort for it. Practice it. Try it and achieve it. तो आपका क्या है, आप दूसरों को भी बांट सकते हैं, खुद भी खुश रहेंगे। दिस इज द बेस्ट स्पिरिचुअल, इट विल एलिवेट यू फ्रॉम बॉडीली, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, 3 ऑफ दोज लेवल्स। तो हम बात कर रहे थे, हम दोबारा उस बात पे वापस आते हैं, कृष्णा कॉन्शियस की साइंस पे। आजकल क्या है कि हमारे तो हरे कृष्णा में गोस्वामी, गुरु, प्रभु लोग बोलते हैं मोबाइल तक नहीं इस्तेमाल करना, हाँ, क्योंकि मोबाइल कलयुग का प्रतिनिधि है, ये आपको नरक का द्वार दिखा रहा है, और बच्चों की आजकल आंखें भी इससे खराब हो रही है। तो क्या दे रही है आपकी साइंस, तो पतन की ओर ले जा रही है। मैं सोच रहा हूँ टेक्नोलॉजी, साइंस इज एडवांसिंग, बट ये मुझको पतन की ओर लेके जा रही है। आंखें खराब हो रही है मोबाइल से। ठीक है, आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप सिर्फ बात करिए, फ़ोन पे कम्युनिकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान का आरती सुनिए, उनका फ़ोटो देखिए, उसको शेयर कीजिए, आरती कीर्तन। तब क्या है, इंद्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगेगी, आप अंश भगवान के पूर्ण में लगेगी, तो आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि प्यास वही बुझा सकते हैं। भौतिक जगत में सिर्फ एक बूंद जल है, material world is like a desert. Will that one drop of water will quench your thirst? No, it cannot quench your thirst. और वहां पर क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक, राधा कृष्णा, दूध की दूध टैंकियां भर के, पानी नहीं दूध रखा हुआ है, पल पल प्यास बुझती जा रही है, पर पल पल एक प्यास बढ़ रही है, वो कौन सी है, दर्शनों की प्यास। मैं पल पल, रोज, हफ्ता, महीना, डेली, और पल पल राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। और जो अच्छे से कर लेगा वो सब में, हर एक इंसान में, हर एक जीव में, हर एक जानवर में, इवन नॉन लिविंग थिंग्स में वो राधा कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो हम बता रहे थे ये जो साइंस है, नो डाउट योर मटेरियल साइंस कैन ऑल्सो बी गुड इफ अप्लाइड फॉर कृष्णा और फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ पीपल। तो चिंता और चिता जग में एक समान कहलाती है। जो चिंता है वो आपको, चिता तो एक बार जलाती है, चिंता पल पल जलाती है। तो इसलिए मत लगाइए ज्यादा अकल, कृष्ण चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। हरि बोल, हरि बोल। तो क्या कह रही है, ओ कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल, ओ
कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ बसे मेरी राधे रानी, जहाँ बसे मेरी राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, ओ कन्हैया ले चल परली पार। हाँ जी, अब इस पॉइंट पर आते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मनी एंड मैरिज। शादी बंगाल में क्या कहते हैं जी, शादी इन बंगाल दे यूज टू से डाक भेरी, माने बैंड बाजा बजा के बेवकूफ बनाना। रियल पार्टनर इज ब्रह्मा, ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। शादी माने श के अधीन होना, श आदि शादी है ना, श के अधीन होना माने ससुर, ससुराल, उनके अधीन होना। एंड इफ द वाइफ इज डिवोटी देन गुड, अदरवाइज दिन को शॉपिंग करवाओ, चौड़ी चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, तो और रात को रूप का नशा, माने दिन को डागनी रात को बागनी, पलक पलक लहू चूसे तो भी दुनिया बोरा होके घर घर भागनी ढूंढे। तो हस्बैंड वाइफ बोथ शुड बी डिवोटी। पति ना तो भगवान को पढ़ रहा, भागवतम पढ़ रहा, ना तो 16 माला कर रहा, तो पत्नी को कौन पूछेगा कि भाई तुम भी करो। तो लोग बोल रहे हैं हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी हैं जी, हम गृहस्थ में आ गए हैं। सो दिस इज नॉट गृहस्थी, दिस इज ग्रेम वेदी। ग्रेम वेदी यौन सुखम ही तुच्छम, कंडू नेन करियो इव दुख दुखम, ये शास्त्र बता रहे हैं। तो देयर मोटिव इज ओनली हाउ टू गेट प्लेजर फ्रॉम सेक्सुअल एंजॉयमेंट। जो लोग भक्ति में नहीं, वह केवल जिंदा लाश के समान है। नाउ व्हाई डू वी नीड मनी फॉर? Krishna is saying, when you were climbing upside down in mother's womb, I made an arrangement for you to live and eat. And when after 9 months you were delivered with your body, milk came out into your mother's breast. At that instant only. Furthermore, you can plant trees, mango, tomato, ginger, apple, banana. इससे आप प्योर खाएंगे instead of eating urea and mixed poison from outside. Furthermore, Gurdwara, Masjid, Mandir, Temple, Church, social service, free food to eat, prasadam, langar, everything is arranged. Arrangement is here. So why do we need money? पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि जीव सेक्स करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो दैट्स व्हाई वेदास, उपनिषद्स should be followed. Read as instructions. You should read, you should follow the instructions, you should read carefully and what to follow or not to follow. देखिए वेदों, उपनिषदों, गीता, भागवतम सब कुछ दिया गया है, फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं, पैसे किस लिए चाहिए ये भी लिखा है हर एक श्लोक. इसीलिए हम इसको पढ़ के जाग सकते हैं, सबको जगा सकते हैं. जीव भक्ति से भटक गया है. हम असल में भगवत धाम रहते थे, गोलोक वृंदावन. कृष्ण हमारे असली पिता हैं, वो परमात्मा, हम आत्मा है. तो जैसे इंसान है ना, जैसे कई महात्मा लोग, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, सब आदर जो है गुरु हैं, मैं किसी की पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ. तो जैसे सब गुरु ना एक पत्ते के समान है, पेड़ एक ही है, पत्ते अलग अलग है, तो सब पत्ते सेम है, सब गुरु सेम है. और माने पेड़, पेड़ माने भगवान, सब एक ही मंजिल दिखा रहे हैं, रास्ते अलग है, मंजिल एक ही है, भगवान. तो कई कहते हैं जी वो कृष्ण कृष्ण करते कृष्णा हो गया, राधा राधा करते राधा हो गया. वो ठीक है, कई बार नौकर आपके घर पे होगा, कभी कई ऐसे होगा कि मालिक से भी ज़्यादा नौकर की तारीफ होगी, और मालिक जो है, जो नौकर मालिक की तरह भी लग सकता है. जैसे जो गोलोक वृंदावन जाएंगे भगत, वो कृष्ण के रूप में होंगे, बट दैट स्टिल डज नॉट मीन दैट ही इज इक्वल टू कृष्णा. कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में, बेटे ना तो कोई मेरे इक्वल है, अर्जुन महाराज को बता रहे हैं कि पार्थ पुत्र, ना कोई मेरे तुल्य है, ना कोई मुझसे बड़ा है. जितनी भी योनियां, पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कितने तरह की यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स, उसमें जो भी बीज देने वाला पिता हूँ वो मैं ही हूँ. अहम बीज प्रदम, अहम जो है, जो मैं पिता हूँ,
अहम बीज प्रद पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो ना तो कोई जो है कृष्ण के तुल्य हो सकता है, ना कोई उनसे बड़ा हो सकता है, सब उनके पुत्र तुल्य है। तो मैं बता रहा था क्यों चाहिए पैसा, क्योंकि जीव ये इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहता है। सो चैन से सोना है तो जाग जाइए, वेदों को पढ़िए, भक्तों का बात सुनिए, तब जीवन में तरक्की आएगा। जैसे मैं सबसे पहले बताया, भगत को जरिया बना के श्री कृष्ण भगवान भेजते हैं, उसको सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे तो कृष्णा भी शेल्टर चरण कमलों में शरण नहीं देंगे। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपना कीर्तन तो बेटे ध्यान से सुनता हूँ, पर जो मेरा भक्त होता है उसका और भी ध्यान से सुनता हूँ, ज़्यादा अच्छे से कान लगा के वहीं पे पहुंच जाता हूँ। भगवान वैसे उनका भी कीर्तन करेंगे, पहुंच तो वहाँ भी जाएंगे, वैकुंठ तो वहीं बन जाएगा। पर हाँ, जो मेरे बच्चों का, मेरे भक्तों का मान सम्मान और जो है उनका कीर्तन अच्छे से करता है, उनको याद करता है, भक्तों को, गुरु को, तो भगवान ज़्यादा अच्छे ध्यान से कान लगा के सुनते। तो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, जैसे अब ये देखिए साइंस, मैंने आपको बताया पहले के ज़माने में गाँव में लोग जाते थे, इतने इतने बड़े लड्डू खाते थे, 10-10 खा जाते थे असल देसी घी के। आज आप इतने छोटे छोटे लड्डू जो है ना, तो आजकल देखिए बेसन रहा है, हल्दी में रंग मिलता है हर जगह, यूरिया, आजकल एक ही फंडा है, घर का खाओ जान बचाओ, उसमें भी आपकी सब्जियां जो पेस्टिसाइड यूरिया वो आ रही हैं लगी हुई। तो बेस्ट इज भोग लगा के खाइए भगवान को, गुरु को। उससे क्या है कि मीरा को विष दे दिए, वो पी गई, ठाकुर जी का नाम लेगी, वो कहते वो देखो वो देखो, वो तो गलियों में हरि कीर्तन कर रही है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अमृत बन गया, विष भी अमृत बन गया भगवान को भोग लगाने से। जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन, तो फूड शुड बी प्योर। वो भगवान को भोग लगा के उनका उचिष्ट खाएंगे। प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद खाने से जो है कई जन्मों जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, सारे दुख टल जाते हैं, है ना। और मन आपका भजन हरि कीर्तन में लगेगा। तो हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि जीव को पैसा इसलिए चाहिए, पर हम ये नहीं कहते कि मना नहीं करते कि आप काम मत करिए, पिछले जन्मों के कारण जो भी मेरे भाग्य में लिखा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, तो काम काज को राम काज में लगाइए। और शास्त्र क्या बता रहे हैं, ग्रह सुताप्त वित्तई अहम महो अहम ममेति। एक अहम होता है, मेरा तेरा, मोह माया में फंसा होता है व्यक्ति। और पैसा इसलिए भी चाहिए, ग्रह चाहिए, मुझे शादी के बाद मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरी पत्नी डिमांड कर रही है, अरे मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। तो शास्त्र क्या कह रही है, दीवा चाहते हैं राजन कुटुंब भरने नवा, एट नाइट ही वॉन्ट सेंसुअल प्लेजर and in the morning he is after money. I have to run the family, my wife is also making more demands, now kids have to go to school, I am responsible man now. So this is temporary, we are part and parcel of Krishna। काम करना मना नहीं है, जॉब वगैरह, because of sinful deeds in previous births I am getting some punishments in this life। बट काम काज को राम काज में लगाइए तो जीवन में आनंद बना रहेगा और काम काज भी सफल होगा। बट भक्तों का बात नहीं सुनेंगे, देन मोर पनिशमेंट इज स्टिल अवेटिंग आफ्टर डेथ ऑफ दिस बॉडी, दैट इज यमदंड, द बिगेस्ट सफरिंग, नरक में यमदंड। तो देखिए शुगर ट्रीटमेंट और पथरी का भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस सत्संग में भी लिखा हूँ, किसी को शुगर हो उसके थोड़े टिप्स दे देता हूँ। आप मेथी दाना जो है लीजिए, 80% गिलास में भरिए पानी, कांच का गिलास हो, और मेथी दाना उसमें आप डाल लीजिए, और सुबह उठ के खाली पेट 5-6 बजे, जितने बजे आप उठते हैं, मेथी दाने को खा लीजिए, उस पानी को पी लीजिए।
17 दिन या महीने तक फ़र्क आ जाएगा। मीठे को परहेज कीजिए और बट लिटिल बिट यू हैव टू हैव इट, मतलब हफ्ते में 1-2 बार, नहीं तो ब्लड और शुगर लो चले जाता है, जीरो चले जाता है बिल्कुल। और जब आपका बहुत ज़्यादा दिल करे, या तो हलवे की कढ़ाई सैटरडे को खुद कम खाइए और डॉगी को डाल दीजिए, जो बाहर स्ट्रीट डॉग भी होगा। तो इससे क्या है, पितृदोष भी आपके टलते हैं, जीवों में भगवान देखने में मदद मिलता है। हम गैया का सेवा करेंगे, डॉगी का सेवा करेंगे, उनमें भी भगवान है। और क्या है, थोड़े आपके घर से कलेश, डॉगी को आप ऐसे दे सकते हैं, एक जीप पे लगा के 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा फेर के उसको खिला दीजिए। ब्लैक डॉग है तो बहुत ही अच्छा है, काला श्वान। और आजकल आपको काला या वाइट चिट्टा जो है मिक्स मिलेगा। जो काला होता है बहुत महंगा होता है, वो लोगों ने पाला होता है, वो भी किसी किसी ने, हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई नहीं लेता। तो उसको डाल दीजिए, जो भी भले आपको वाइट श्वान जो भी मिले, वो आपके घर से आपके पितरों का कलेश ले जाता है। बट यस, पितृ दोष करवाना पड़ता है, किसी से करवाना ही पड़ता है एक बार, अगर आपको वाकई ये चीज़ है। अब लोग मुझे पूछते हैं पितृदोष, पितृदोष, हम तो हरे कृष्णा में आ गए, हमें कैसा पितृदोष। तो मैं अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस से ये जाना हूँ कि मैंने कई लोगों का जो है नंबर दिया है, उन्होंने पितृदोष का उपचार कराया है। तो उसमें क्या है कि कान्हा ये कह रही है कि बेटे तू बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, क्योंकि पहले हम भक्ति करते नहीं, हमारे पितरों का तर्पण दादा परदादा, उनके ऊपर जिन्होंने हमारे घर दिया, छत दी, खाना दिया, उनका तर्पण बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ पिंड तर्पण करने से उनको गति मिल जाती है, या गया जाने से, या गरुड़ कथा कराने से, नहीं। मोस्ट ऑफ इट 98% आजकल वो रह जाती है घर में। उसका इच्छा होता है, डिजायर होता है, मैं ये कपड़ा पहनता था, मैं ये खाता था। मटेरियल वर्ल्ड में उसके डिजायर जाते नहीं, उसकी गति नहीं होती, उसको शरीर नहीं मिलता, इसलिए वो आप में भी आती है, आपसे काम कराती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो क्या होता है, जब आप अच्छे से भक्ति करते हैं तब कान्हा जी रास्ता दिखाते हैं कि ये भी निवारण करा लो, डॉगी को, कुत्ते को रोटी डालो, और जो भी है पर्टिकुलर बंदा जिसके पास आप गए हैं जो इसको करता है निवारण, उससे करवा लेना चाहिए। और इस ये क्यों होता है, क्योंकि कृष्णा कह रही है वो भी मेरे बच्चे हैं, जो तेरे पितर हैं, तू भी मेरा बच्चा है। तो वो उनको दुखी होता नहीं देख सकते, इसीलिए कान्हा जी उधर शरण में लाते हैं कि अब ये गति करा ले, ताकि तू भक्ति में आगे और यू कैन फर्दर प्रोग्रेस, उसमें भी आप उन्नति कर सकें। तो होपफुली आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा ये लेक्चर, जितना मैं कर सकता था। देखिए और भी सोल्यूशन बताऊंगा और आगे आते रहेंगे लेक्चर। अगर काफ़ी सोल्यूशन हद तक बताने हो, लेक्चर 2-3 घंटे का भी हो सकता है, बट अभी इतना ही रखते हैं। मैं आपको जितना और हो सके आने वाले लेक्चरों में और चीज़ें बताता रहूँगा। तो एक बात मैं बताना चाहता था, देखिए इतने इतने बड़े लड्डू पिछले ज़माने में क्यों वो 4-4 घंटे चलते थे हमारे पूरे गाँव में, पिंडों में, विलेजेस में 4-4 घंटे चलना आना, उनको हजम हो जाता था। तब डाइट भी अच्छी थी, प्रॉपर थी। अब वो डाइट भी नहीं रही। हाँ, यूरिया हर खाद में मिल रहा है, और जो है फूड इज़ नॉट गुड। तो एटलीस्ट यू कैन ऑलवेज ऑफर टू कृष्णा, राधा कृष्णा, यू कैन ऑफर टू गॉड दैट प्रसादम, ताकि वो प्रसादम बने, आप उनको भोग अर्पण कीजिए, फिर अपने लिए पाइए तो विष भी अमृत बन जाएगा। तो इस विधि से आप कैसे अच्छे से रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, वो भी आनंदित हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू कीप स्प्रेडिंग दिस हैप्पीनेस, यू विल बी हैप्पी, कंटेंटफुल, ब्लिसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल। तो अभी क्या है कि गाड़ी आ गई है, मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा, मेरे को शुगर होगा, हाँ, और मेरे को ये डिजीज़। अच्छा, मैं आपको पथरी का भी बता देता हूँ, ये उर्दू का मंत्र है, तो मैं कईयों को बताया हूँ, उनको लाभ हुआ है पथरी में। बट जो भी मैं आपको शुगर या पथरी का बता रहा हूँ, आप अपनी मेडिसिन चालू रखिए, उसको नहीं छोड़ना है, अपने टेस्ट चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि दुआ है ये, ब्लेसिंग। मेडिसिन विल कैन वर्क ओनली विद ब्लेसिंग, विदाउट ब्लेसिंग एवरीथिंग इज फेल। दुआ के बिना दवा काम नहीं करती। जिसको भी मेरे प्रभु, भाई, मित्र, माता को, जिसको भी
पथरी हो, तो जब भी वो नहा धो के निकले कपड़ा पहनने से पहले, पीते में हो, लंग में हो, किडनी में हो, कहीं हो, तो वो 7 बार या वधु दू, कृष्ण यादव है ना, यादव से याद रख लीजिए, या वधु दू, या वधु दू 7 बार बोलिए और 3 बार इस उंगली पे फूंक मारिए, ठीक है। और जहाँ जैसे यहाँ पर है तो ये क्रॉस का साइन 7 बार, ये याद रखिएगा, 7 3 7, या इस वीडियो को रिवाइंड या फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। तो 7 बार या वधु दू, 3 बार फूक और 7 बार ही आप ये कांटा लगा सकते हैं जहां पर भी पथरी है। जिसको 2 जगह हो तो वो एक बार ऐसे करके फिर दोबारा करे, दैट विल ओनली टेक योर 2 मिनट्स डेली के, और ये 2 मिनट आप दीजिए। मैं 8-10 लोगों को बताया हूँ फिलहाल, तो वो 2-2 महीने में, 1.5 महीने में, 3-3 महीने में उनकी पथरी घुल के निकल गई है। तो आप भी ये जरूर उपाय ट्राई करिएगा और होपफुली बहुत अच्छी फीडबैक आएगी। तो हम ये बता रहे थे, गाड़ियाँ आ गई हैं जी। पैसा, हम पैसा लोग मानते नहीं, क्या दे रहा है पैसा ही मेन टेंशन की जड़ है। पैसा ठीक है, और प्रभुपाद जी बोले थे कि हमारे भी जो भगत है मंदिर में वो पैसे के लिए काम ना करे, उनको सैलरी दी जाएगी। वो कहते थे उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, बट आजकल देते हैं, दे भी जा रही है। प्रभुपाद जी एक पर वो रखे थे स्पेशल प्रोग्राम जीबीसी में, बोले थे उनको सिर्फ 4 कपड़े और जो है रिक्वायरमेंट जो होगी पूरी कर देंगे। वो स्पेशल अथॉरिटी, बिग हायर अथॉरिटी पे जाएं टेंपल पे, जब भी उन्हें मनी की नीड हो, मान लीजिए मोबाइल में कुछ आपको रिचार्ज कराना है, देन यू कैन गेट दैट हेल्प, या फॉर मेडिसिन्स। बट ठीक है, अब सैलरी दी जा रही है तो आत्म तुष्टि के लिए इस्तेमाल करें, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। उससे क्या है, एक बार प्रोपा जी बड़ी जोर की बोले थे कि we should not introduce salary in this the Krishna conscious system, because if everybody is on salary money, this will destroy our system one day, ये खत्म कर देगा हमारे कृष्णा कॉन्शियस। हालांकि देखिए वो चिंता की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हर एक तरह की भविष्यवाणी की है, वो बताई है कि आने वाले 10,000 ईयर, 10,000 साल तक हमारा ये हरे कृष्णा का सिस्टम चलने वाला है। तो कोई इसमें विपदा की बात नहीं है, पर हाँ दुख इसी बात का होगा, निराश वही व्यक्ति होगा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करता है, उसके लिए दुख की बात है। वही इससे कलेश पाएगा, पीड़ा पाएगा, सफरिंग पाएगा। कैसे शास्त्र कह रहे हैं, अगर मैं भगवान का पैसा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लोगों के लिए नहीं करता क्योंकि उनमें प्रभु बसते हैं मेरे, या भगवान के मंदिर के लिए नहीं करता, तो यस मुझे अगला जन्म तो डिवोटी का मिलेगा, मैं मंदिर में रहूँगा, पर चूहा, छिपकली या कोई चींटी कीड़ा ऐसा जीव बन के मुझे मंदिर का राशन खाना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में भी मैं यही कर रहा हूँ, तो अगले जन्म में ऐसा ही शरीर पाऊंगा, जैसा करूँगा कर्म वैसा होगा जन्म। तो ठीक है जी, दैट इज़ राइट। तो उसी बात पे दोबारा आते हैं। तो साइंस देखिए तरक्की के साथ ये पतन की ओर लेके जा रही है आपकी साइंस। गाड़ी आ गई जी, बीमार हूँ, पैदल चलता नहीं, मोबाइल देखता हूँ जी, आंखें मेरी खराब हैं। तो दिस इज व्हाट योर साइंस। असली साइंस ये है भागवतम, गीता। मेरे ऊपर 7 लोक हैं, 7 वर्ल्ड्स, उसके बारे में जानना चाहिए। नीचे 7 है, कौन से? सुतल, अतल, वितल, पाताल, तलातल, रसातल। ऊपर क्या है? ब्रह्मलोक, सिद्धलोक, चारण लोक, किन्नर लोक। सबसे ऊपर आता है जी ब्रह्मलोक, उसके ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, जो कि 26 गुना, ये कोई भी एक प्लेनेट ले लीजिए, वैकुंठ या ब्रह्मलोक, इससे 26 गुना बड़ा है। अच्छा, भागवतम बता रही है सन से लेकर आप जाएंगे जो मतलब कि सन जो है रिवॉल्व कर रहा है ना, स्वर्ग से लेकर जो है नरक तक, कितने उसमें जाएगा? 6 घंटे में। हाँ, उसका स्पीड भी मेंशन है ना। तो इस साइंस के बारे में जानना चाहिए, इससे हमारी तरक्की होगी। ठीक है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, उस एजुकेशन में भी आप इसको मिला लेंगे, कृष्णा को थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे। वन हु नोज कृष्णा ही नोज एवरीथिंग।
तो वन हु इज ए फ्रेंड ऑफ कृष्णा इज फ्रेंड ऑफ एवरीवन, बिकॉज इन एवरी हार्ट हु इज रिसाइडिंग कृष्णा। तो इसको आप जानेंगे तो आपका भला हो जाएगा, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, आपका धन भी अच्छे से हो जाएगा। सो डिवोटी इज देयर टू हेल्प, वो कोई आपके लिए दुख नहीं ला रहा, वो कोई दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है। और हम उसका बात क्यों नहीं सुनना चाहते, क्यों कड़वा लगता है, क्योंकि हमें पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, मिलियंस ऑफ बर्थ्स के कारण जिन आदतों में पड़ गया हूँ, उस हैबिट से मुझे निकलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुझको वो लोग दोस्त लग रहे हैं जो कि सोसाइटी में मुझे भटका रहे हैं इधर उधर, सस्पेंडेड, दे आर सस्पेंडिंग मी हियर एंड देयर, कि भैया ये शराब पी ले, सिगरेट पी ले, ये प्रोस्टिट्यूशन, एवरीथिंग। वो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस आदतों में मैं जन्मों जन्मांतरों से भटक रहा हूँ। पर मुझे जब ये लगेगा, कहते कि रात को पिएगा, सुबह पिएगा, पी पी के तेरे प्याले खत्म हो जाएंगे, एक ही बार हरि नाम का प्याला पी ले, तेरे पीने की नीयत खत्म हो जाएगी। हरि बोल। तो आज का हम इतना ही रखते हैं, और इसका एंड हम करते हैं हरे कृष्णा कीर्तन से आज के लिए। तो आइए थोड़ा सा हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। होपफुली आपको इसमें काफ़ी बातें पता चली होंगी आज, और मैं यही चाहता हूँ आपका भला हो जाए, आप लोगों की खुशी मेरी खुशी है, और इसी सेल्फलेस मोटिव के लिए, निष्काम सेवा के लिए मैं काम करता हूँ। मैं आप लोगों में सब में भगवान देखता हूँ, और मैं दास हूँ आपका। और ये इसी भावना से, ये उच्च कोटि की भावना से हम खुश रह सकते हैं, और सबको एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। राग द्वेष में कुछ नहीं रखा। मटेरियल वर्ल्ड में पड़ोसी को क्या कह रहा है, अरे वो एक गाड़ी ले लिया, मैं 2 ले लूँगा। पर भक्ति की लाइन में क्या है, स्पिरिचुअल लाइन में, अरे वो तो छोटे भगत है, वो कम माला करते हैं, मैं उनको बताऊंगा ताकि वो ज़्यादा माला कर सके। और वो छोटा जो कम माला कर रहा है, वो अरे वो तो बड़े भगत है, वो ज़्यादा माला करते हैं, मैं उनको जाके पूछता हूँ, मुझे हेल्प करना। दोनों एक दूसरे को हेल्प करना है। दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल रिवर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। राग द्वेष होता है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में बहुत खतरनाक होता है। राग माने जो जेलसी, द्वेष माने अनवी, उससे भी खतरनाक। राग तो उसकी प्लेट में ये 1-2 लड्डू हैं, मेरी प्लेट में 3 होने चाहिए, उसमें उसको 2, मेरे को 1 क्यों मिला, उसको 2 क्यों मिले, हैं जेलसी। और एनवी उससे भी खतरनाक, वो उसके पास 2 गुलाब जामुन है, मैं 1 छीन लूँगा या दोनों ही छीन लूँगा, तो उससे वो कुछ नहीं पाता, जैसा बोएगा वैसा वो पाएगा। जैसा वो पेड़ बोलते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से होए, या मेरे ख्याल ऐसा बोलते हैं, नीम का पेड़ बोए तो बबूल कहाँ से आएगा। मतलब जो पेड़ वो बोएगा, फल तो उसी पेड़ का ही लगेगा ना जो उसने बीज बोया था। तो इस तरह है, टिट फॉर टैट। तो जैसा हम देंगे वैसा ही आपको वापस आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, सब में भगवान को देखने का कोशिश कीजिए, इससे आपके जीवन का जो है उद्धार हो जाएगा, और मेरे जीवन का उद्धार होगा तभी मैं दूसरों के जीवन का उद्धार कर सकता हूँ। जैसे वो बचपन में हम प्रेयर पढ़ते थे ना, मन विजय करें दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो खुद की जय पहले कीजिए, खुद भक्ति में लगिए, अपना उद्धार कीजिए, फिर हम दूसरों को जय हो बोल सकते हैं, सब में प्रभु को देख सकते हैं, है ना। तो हरि बोल आज के लिए। आइए हरे कृष्णा कीर्तन के साथ इसको हम एंड करते हैं। जय राधा माधव कुज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा माधव राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, जय वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, जय जय प्रभुपाद जय जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका साम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। संवेद भक्त वृंद की जय। सभी भक्तों की, आप सभी भक्तों की जय 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 हो। शिला प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।